السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ شیر افضل مروت کا آصف زرداری کی جانب سے رابطے کا انکشاف۔ بابر ایوان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے حلف نامے ہمارے پاس ہیں۔ ریحانہ ڈار کا کہنا تھا کہ میں حلفیہ کہتی ہوں کہ میں جیتی ہوں۔ چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر سیاسی قائدین کی ملاقات کی اندرونی کہانی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، کاف لیگ، بی این پی، آئی پی پی کا مل کر حکومت بنانے کا اعلان۔ سیاسی قائدین کا وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا۔ بلاول صاحب، آپ کے بابا کو صدر بننے کے لیے ہمارا ووٹ چاہیے ہوگا، ایم کیو ایم نے خبردار کر دیا۔ فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، باتیں اتنی کریں بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد پر بلاول کے والد ہمارے در پر آئے تھے۔ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کا دھاندلی کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا اعلان۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ بدترین دھاندلی اور مینڈیٹ چوری کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے۔ انتخابات کے نام پر بدترین ڈرامہ رچایا گیا اور سیٹوں کی بندرباٹ کی گئی۔ سیاسی جماعتیں احتجاج کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں۔ جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ قوم پرستوں کو بھی بلوچستان کی ترقی کو ترجیح دینی چاہیے۔ بلوچستان صوبے میں 80% سے زیادہ راستے کھل چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا واضح موقف ہے کہ الیکشن کمیشن سب کا ذمہ دار ہے۔ الیکشن کمیشن کے رویے سے لگ رہا ہے جان بوجھ کر کیس لٹکا رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ممبران سے عجیب و غریب لطیفے سننے کو ملے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا واضح موقف ہے کہ الیکشن کمیشن سب کا ذمہ دار ہے۔ الیکشن کمیشن کے رویے سے لگ رہا ہے جان بوجھ کر کیس لٹکا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ کراچی کے تمام حلقوں سے تحریک انصاف جیتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے تمام فارم 45 رکھے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے واضح پیغام دیا، نگراں حکومت اسی طرح مینڈیٹ چراتی رہی تو جمہوری عمل پاکستان میں ختم ہو جائے گا۔ ہم حکومت بنانے کے لالچ میں ان پارٹیوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشنز میں پھینکا گیا تھا، سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 2/3 اکثریت سے پی ٹی آئی جیتے گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے آصف زرداری کی جانب سے رابطے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا، پیغام دیا گیا ہے کہ ہماری ترجیح نون لیگ کے بجائے تحریک انصاف ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ آصف زرداری نے کچھ لوگوں کے ذریعے رات 11 بجے رابطہ کیا، پیپلز پارٹی کے رابطے پر دستیاب پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے کہ ہماری ترجیح نون لیگ کے بجائے تحریک انصاف ہے، کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں رابطوں سے آگاہ کروں گا۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اپنی نشستیں ضابطے کی کارروائی کے تحت واپس لے لیں، اعتراض نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ریحانہ ڈار نے کہا کہ میں حلفیہ کہتی ہوں کہ میں جیتی ہوں۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریحانہ ڈار نے کہا کہ قومی اسمبلی کے حلقہ این 71 سے ہم سیٹ جیتے تھے۔ ریحانہ ڈار نے کہا کہ ریٹرننگ افسر آج بھی اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر سکا۔ الیکشن کو 5واں دن ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہے۔ خواجہ آصف بھی حلفیہ کہہ دیں کہ وہ الیکشن جیتے ہیں۔ علاوہ ازیں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے وکلاء نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں۔ خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔
वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर इत्तेहादी जमातों के अकाबरीन का अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम रहनुमाओं ने मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर इत्तेहादी जमातों के अकाबरीन का अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम रहनुमाओं ने मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया। सियासी कायदीन की बैठक के बाद रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज हमने तय किया है मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, चाहते हैं PTI भी मफाहमत में शामिल हो। शहबाज शरीफ बोले, आज जो जमातें यहाँ इकट्ठी हुई हैं वो 2/3 अक्सरियत रखती हैं, अगर PTI के पास अक्सरियत है तो वो ले आए, हम सब इसका एहतराम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, उस पर उनके शुक्रगुजार हैं। इजलास में शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, सादिक संजरानी, अलीम खान, तारिक बशीर चीमा, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज हमने तहरिया किया है, आपस में मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे। हम पर कर्ज बहुत है और देखा है कि इसकी किस्तें कितनी रह गई हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, हम इकट्ठे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, चाहते हैं PTI भी मफाहमत में शामिल हो। इस मौके पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम सब मिलकर बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, हम पहले भी इकट्ठे थे, फिर इकट्ठे होकर पाकिस्तान की जमहूरियत को संभालेंगे, हम इस सारे मामलात में मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सबको मिलकर बहरानों से निकलना होगा, पाकिस्तान का एजेंडा नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने इलेक्शन लड़े और एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बातें की, अब इलेक्शन हो चुके, अब हमने इस मुल्क की इकानमी को अपने पैरों पर खड़ा करना है, हमें इख्तिलाफात ख़त्म करके मिलकर काम करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में जो महंगाई है इसके खिलाफ हमने जंग लड़नी है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपना वोट देने का फैसला किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान ने भी वोट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस मुल्क की इकानमी को मजबूत बनाना है, हमने मिलकर मुल्क में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़नी है। मैं गुजारिश करूंगा नवाज शरीफ साहब से कि वो मुल्क के वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ विफाक की बात कर रहे हैं, हम सब इख्तिलाफी मामलात को भुलाकर 25 करोड़ आवाम के लिए सोचें। पाकिस्तान जिस तरह मौशी हालात में घिरा हुआ है, इसके लिए इनकलाबी इक़दामात उठाने होंगे। साबिक वजीर आज़म ने कहा, मैं फिर दोबारा सबको दावत देता हूँ, आएँ और आगे बढ़ें, आएँ और बाहमी इख्तिलाफात भुलाकर इकट्ठे हो जाएं। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो PTI सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ, ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने बिलावल भुट्टो के बयान पर कहा, बिलावल साहब इतना बोलें कि कल साथ बैठने में शर्मिंदगी ना हो, आपके बाबा को सदर बनने के लिए हमारा वोट चाहिए होगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने बिलावल भुट्टो के बयान पर कहा, बिलावल साहब इतना बोलें कि कल साथ बैठने में शर्मिंदगी ना हो, आपके बाबा को सदर बनने के लिए हमारा वोट चाहिए होगा। तफसीलात के मुताबिक MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि MQM को 17 नशिस्तें दी गईं, आपकी नशिस्तें जीत और MQM जीते तो नशिस्तें दी गईं। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी और दीगर नामुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोचा था इलेक्शन के बाद 1-2 दिन सुकून से गुजरेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो की बात पर जवाब देना लाजमी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं एतमाद का वोट देंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। फैसल सब्जवारी का बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहना था, बिलावल साहब इतना बोलें कि कल साथ बैठने में शर्मिंदगी ना हो, आपके बाबा को सदर बनने के लिए हमारा वोट चाहिए होगा। स्पीकर के इलेक्शन पर आपको हमारे वोट की जरूरत पड़ेगी। फैसल सब्जवारी का कहना था कि मिर्जा इख्तियार बेग, नबील गबोल जीत सकते हैं तो MQM क्यों नहीं। 2018 में हम जीते हुए थे लेकिन नशिस्तें नहीं मिली। रहनुमा MQM ने कहा कि बिलावल साहब आपके वजीर आजम बनने का ख्वाब MQM ने नहीं वोटर्स ने छीना है। बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद पर बिलावल के वालिद हमारे दर पर आए थे, खालिद मकबूल के साथ मुआहदे पर आपने ही दस्तखत किए थे। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन पर किसी को एतराज है तो हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाए। कराची के किसी दिलजले ने जिसने या तो अपने या किसी और के करोड़ों रुपए खर्च करवा दिए जिला बस्ती से पीपल्स पार्टी के, उसके किसी मैसेज के ऊपर मुझे लगता है कि बड़े चराग पा हुए बिलावल साहब, और उन्होंने ये फरमा दिया कि MQM को 17 नशिस्तें दी गई। आप ख्वाब देखते हैं इस मुल्क के वजीर आजम बनने का, उस ख्वाब को मैंने नहीं छीना भाई,
वोटर्स ने छीना है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी ने अंदरूनी सिंध कराची में धांधली के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी ने अंदरूनी सिंध और कराची में धांधली के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। GDA की जानिब से जमात इस्लामी को हैदराबाद टोल प्लाजा पर एहतजाजी धरने में शिरकत की दावत दी गई, जिसे हाफिज नईमुर रहमान ने कबूल किया और धरने में शिरकत की यकीन दहानी कराई। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी सिंध में पोलिंग स्टेशन पर कब्जे करके जबरदस्त किस्म की धांधली की और मैंडेट पर कब्जा किया। हम फॉर्म 47 के जाली नताइज को कबूल नहीं करते, फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजे जारी किए जाएं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नायब सदर डॉक्टर सफदर अब्बासी और जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम की जेर क़यादत वफ़द ने मंगल की शब इदारा नूर हक में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली और मैंडेट चोरी के खिलाफ आइंदा के लाहा अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हाफिज नईम ने कहा, इंतखाबात से कबल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वाले हुकूमत और इक़्तिदार के हुसूल के लिए गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं। इंतखाबात के नाम पर बदतरीन ड्रामा रचाया गया और सीटों की बंदरबांट की गई। हम बदतरीन धांधली और मैंडेट चोरी के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा कि धांधली और मैंडेट को चोरी करने के हवाले से जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में अपनी नशिस्त न लेने का फैसला इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। आम इंतखाबात में मुल्क के आईनी और जमहूरी तशख़्ख़ुस को पामाल किया गया है। सफदर अब्बासी ने कहा कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में लिखे हुए फैसलों को सुनाया गया है। 54 नशिस्तों और 75 नशिस्तें वाले वज़ीर आज़म के ओहदे का दावा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जिस तरह जितवाया गया है, जमहूरियत के नाम पर मजाक है। अंदरूनी सिंध में हमारे उम्मीदवारों ने 1.5 लाख वोट लेकर भी शिकस्त खाई है। GDA रहनुमा ने कहा, GDA की जानिब से पहला धरना GT रोड टूल प्लाजा हैदराबाद पर देने का फैसला किया है। जमात इस्लामी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दावत कबूल की है। जमात इस्लामी अपने धरने में दावत देगी तो हम कबूल करेंगे। सरदार अब्दुल रहीम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि MQM से हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हुआ था, बल्कि सीट एडजस्टमेंट की थी। हम पूरे इंतखाबात को कलअदम करार देने का मुतालबा करते हैं, ख्वाह किसी को भी जितवाया गया हो। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि सियासी जमातें हालात की संगीनी देखें, रास्ते बंद करके एहतजाज से अवाम की मुश्किलात में इजाफा ना करें। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि सियासी जमातें हालात की संगीनी देखें, रास्ते बंद करके एहतजाज से अवाम की मुश्किलात में इजाफा ना करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना था कि सियासी जमातों को वसाइल के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कौम परस्तों को भी बलोचिस्तान की तरक्की को तरजीह देनी चाहिए। बलोचिस्तान के अवाम अच्छे मुस्तकबिल के मुस्तहिक हैं। सूबे में सियासी जमातों को चाहिए अपने इंतखाबी वादों को पूरा करें। जान अचकज़ई ने कहा कि कुछ सियासी पार्टियों की जानिब से एहतजाज आया है। सियासी पार्टियां अदालतों की तरफ भी जा रही हैं, कानूनी तरीके की तरफ ही जाना चाहिए। हमने हर हालत में हुकूमत की रट कायम रखनी है। दरख्वास्त करते हैं एहतजाज करके अवाम की मुश्किलात में इजाफा ना करें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की तरफ जाने वालों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हमारी जिम्मेदारी है कि तमाम रास्ते खुले रखें। जो हारे हैं उनके अपने लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान ने कहा कि चंद मुकामात पर रुकावटों को खत्म करके कौमी धारे में शरीक हों। सूबे में 80% से जायद रास्ता खुल चुके हैं। हमने तमाम रास्तों को बहाल करना है। चमन खुल चुका है, लोब और DI खान का रास्ता भी खुल चुका है। अगर आपने इलेक्शन में परफॉर्म नहीं किया तो उसका खमियाजा आम शहरी को नहीं पहुंचना चाहिए। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।